Hello everyone, welcome to today's class. This is going to be the third practice set for your upcoming exam of finance sub-inspector. In this practice set, again we are going to solve some mixed set of questions from your general science part of the syllabus. In addition to watching the video, kindly go through the pinned comment in the comment section of this YouTube video. Alright, let's move ahead to the first question. Alright, so the first question is the unit of luminous intensity is, and the correct option is candela. Okay, while exploring the other options, take mole is the unit of amount of a substance. It's mostly used in chemistry. Okay, Kelvin, it's the unit of temperature. Alright, and radian is the unit of angle. Alright, so let's move to another question. Alright, so the question is, which of these is an incorrect statement about acceleration? Alright, statement 1 says acceleration is a vector quantity. It's a true statement. Statement 2 says acceleration equals to the rate of change of speed. This is an incorrect statement because acceleration is not the rate of change of speed, rather it's the rate of change of velocity. Alright, and the unit of acceleration is kilogram meter per second square. This is again a true statement. Therefore, we had to find the incorrect statement. Therefore, statement 2 is the incorrect statement. Let's move to another question. Alright, so the question is, which of these implies to the conservation of momentum? So, momentum जो है, we denote it with the letter P. ठीक है, so जो conservation of momentum है, that law of conservation of momentum जो है, that state is that initial momentum, ठीक, that is equal to the final momentum. Alright, that means initial moment, if we denote that as P1, that should be equal to final momentum P2. Therefore, option first is the correct one. Alright, also I have attached this particular picture, and from this you can find that initial momentum is equal to the final momentum, and this is the law of conservation of linear momentum. Alright, so let's move to the first question. Sorry, to the next question. Alright, so the question is, match the following correctly. First option is weight. Weight जो है, it is a vector quantity. Option number 2 is mass. Alright, mass is a scalar quantity. Option 3 is joule. Joule is a unit of energy, and erg is also a unit of energy, but 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. And option D is the friction, and friction is opposite to the applied force. Alright, if we have to decode this particular question as A, B, C and D, weight will be vector, B mass will be a scalar quantity, joule will be second, and D को जाएगा 4. Alright, so this will be the correct option for this particular question. See, यहाँ पे you need to remember weight जो है and mass, they are not the same. We often जब हम use करते हैं तो हम अक्सर इन दोनों को same use करते हैं, but they are not the same. Mass जो है, that's the vector scalar quantity. Weight जो है, that's a vector quantity, and weight is the force with which जो earth की gravity है, that pulls you towards itself. ठीक है, so mass and weight, they are not the same. All right, let's move to another question. Alright, so the question is, work done by a body is 0 when angle between the force and displacement is, and the correct option is 90 degree. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं. एज यू नो, वर्क जो है, वर्क डन जो है, इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है. दैट मीन्स कि फिजिक्स के टर्म्स में हमने फिर कुछ काम किया होता है, लेकिन ये वर्क डन 0 होता है. ठीक है, लेकिन कब? जब थीटा जो है वो 90 डिग्री. लेट्स सी हाउ. एज यू नो, जब हम डॉट प्रोडक्ट को जो है इवेलुएट करते हैं, तो ये बनता है मॉडुलस ऑफ फोर्स मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा. नाउ कॉस थीटा जो है, जब थीटा 90 डिग्री होगा, इट इवेंचुअली इम्प्लाइज कि कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है. उस टाइम पे W जो है वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा. राइट, दैट मीन्स जब एंगल बिटवीन फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी में और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, उस टाइम पे वर्क डन जो है वो 0 होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन इस केस में अगर आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, उस केस में भी फिजिक्स के टर्म्स में वर्क डन 0 होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब एक कूली
जो ट्रेन स्टेशन वगैरह पे देखने को मिलता है, ठीक है, जब वो किसी लोड को अपने सिर पे लेके चलता है, ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, उस टाइम उन दो के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। उस केस में फिजिक्स के टर्म्स में हमें तो लगता है कुली ने काम किया, इवन वी पे दैट कुली, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में उस कुली ने काम नहीं किया होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी वॉल को पुश करते हैं, वी अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल, लेकिन वो वॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो दिखाता है, राइट, क्योंकि वो वॉल जो है, वो दीवार जो है वो मूव नहीं करती है। Despite we are applying the force, there is no displacement shown by the body. Even in that case, वर्क डन जो है वो जीरो होता है। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इन दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, उस केस में वर्क जो है वो क्या वो पॉजिटिव वर्क होता है, क्या वो नेगेटिव वर्क होता है। एक केस में आई कैन गिव अ हिंट कि एक केस में पॉजिटिव होता है, एक केस में नेगेटिव होता है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट पॉजिटिव किस केस में होगा और नेगेटिव किस केस में होगा। ऑल राइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Alright, so the question is, a body in motion on increasing its velocity twofold experiences a change in its kinetic energy equal to, ठीक है, इसका मतलब है अगर एक बॉडी क्या है मोशन में, तो ये अपनी वेलोसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेकिन कितना, दुगना इंक्रीज करती है। आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ए बॉडी इन मोशन, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, ऑब्वियस सी बात है उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ऑलराइट, नाउ वी नो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला है 1/2 ऑफ मास ऑफ बॉडी इनटू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी जो है मूव कर रही है। अगर हम पहला केस माने, हम मानते हैं जब बॉडी के पास वेलोसिटी v थी, उसको हम E1 मानेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ मास तो वही है, वी विल मेक इट 1/2 ऑफ v स्क्वायर, ठीक, या v1 स्क्वायर। ऑलराइट, अब जब ये वेलोसिटी जब ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, कितना करता है, दुगना। अब जो न्यू वेलोसिटी है v2, वो पहली वेलोसिटी के मुकाबले में दुगना है, दैट मीन्स दैट इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी v1। ऑलराइट, अब इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा E2, वो होगा 1/2 ऑफ m, मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, यहाँ पे जो होगा v2 स्क्वायर। ऑलराइट, 1/2 ऑफ मास v2 स्क्वायर के बदले हम लेंगे 2 टाइम्स v1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें कंपेयर करना है E1 और E2 को, यानी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। सो दिस विल बी 1/2 ऑफ मास, दिस विल बी 4 टाइम्स v1 स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस विल बी 4 टाइम्स 1/2 ऑफ m v1 स्क्वायर, और ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू E2। ऑलराइट, अब ये जो E2 है दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, नाउ वी नो 1/2 ऑफ m v1 स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू E1, सो दिस विल बी 4 टाइम्स E1। ठीक, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, स्पीड दुगना करने पर काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, 4 फोल्ड, 4 टाइम्स। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 टाइम्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, मैंने सॉल्व करके भी दे दिया इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज पावर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इट इज द डिस्टेंस, जितना मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, जो उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट डिस्टेंस होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के कंपैरिजन में वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपको पता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कैरी आउट दैट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ पावर जो है इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, सो इट्स वर्क बाय टाइम। ठीक, सो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वर्क का यूनिट है जूल, टाइम का है सेकंड, सो इट विल बी जूल पर सेकंड। एक्सेलरेशन यू नो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज which of the following is the unit of potential difference, and the correct option is volt. All right, so volt जो है it is the unit of potential difference. Okay, let's move to another question. All right, so the question is, which of these is used to control maximum current flowing in a circuit? ठीक है, and the correct option is fuse wire. ठीक है, एज यू नो कि फॉर एग्जाम्पल जब मैक करंट बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाता है। इट इज़ बिकॉज कि इट इज़ बिकॉज टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लोइंग करंट। ठीक है, सो ये फ्यूज़ वायर के बने होते हैं, और फ्यूज़ में जो हम वायर्स इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली हम उन सब्सटेंसेज, उन मटीरियल्स के यूज़ करते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है,
लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। जैसे फिलामेंट के केस में हमने देखा था इन द प्रीवियस क्लास दैट फिलामेंट में हम हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली सब्सटेंसेज मटेरियल्स का यूज करते हैं। एमीमीटर यू नो इट्स यूज टू मेजर करंट, while as voltmeter जो है it is used to measure the potential difference between 2 points in any electrical circuit. Alright, let's move to another question. Alright, so the question is which of these is an equation for the Ohm's law? ठीक है, Ohm's law जो है as you know current electricity में ये एक law आ जाता है, ठीक है, and the correct option is V is equal to IR. थोड़ा सा इसको देखते हैं Ohm's law क्या कहता है। According to Ohm's law कि जब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वो प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट और कंडक्टर, ठीक है। दैट मीन्स जितना दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके हिसाब से ही प्रोपोर्शनेटली करंट का जो वैल्यू होगा। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं सो इट बिकम्स V इज इक्वल टू IR, ठीक है, वेयर R जो है इट बिकम्स द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, V जो है इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, across the conductor, and I जो है I stands for the current passing through the conductor and R जो है R stands for the resistance or the electrical resistance offered by the conductor to the flow of the current. All right, so this is Ohm's law, ठीक है। So when we plot, for example जब हम current को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक, एंड इसका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू, जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है दैट इज इक्वल टू 1/r, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ऑलराइट, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है समटाइम्स इट्स आस्क्ड ओम, ठीक है, और इसका जो सिंबल है दैट इज समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Alright, so the question is the resistance of a conductor is proportional to the ratio of, and the correct option is option D, that's length and area. Now how do we decide this option? Let's explore, ठीक है। As I said कि हमने देखा कि Ohm's law से हमने देखा V is equal to IR, ठीक है, and on experimentation we have found that ये जो resistance होता है it is proportional to the ratio of length upon area of cross sectional area of the conductor, ठीक है। So when we solve this, so it is equal to rho L by A, where ये जो rho है this is read as RHO, rho, ठीक है, it's known as specific resistance, all right, और resistivity, ऑलराइट, एंड ये जो रेजिस्टिविटी है यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक, जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना होगा ये उसी मटेरियल पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कंडक्टर टू कंडक्टर जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करता है। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट बताती हूँ, अगर हमें कंडक्टर माने जिसकी लेंथ हम मानते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडक्टर, ठीक, सपोज इसकी जो लेंथ है दैट इज L यूनिट्स, 1 यूनिट फॉर एग्जाम्पल, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक, दिस नो द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ऑल्सो है 1 यूनिट स्क्वायर, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ठीक, ओके। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Alright, so the question is match the following correctly. So I've chosen this question. यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो instruments लिए हैं और वो क्या measure करते हैं उनके साथ आप we have to find the relation between them. So पहला जो है that is anemometer. Anemometer जो है it measures the force and velocity of the wind. So this is the correct option. So for A, the correct answer will be 2. Next we are left with, I'll change the color, barograph. Barograph जो है it records the recording of the atmospheric pressure. It helps in the recording of atmospheric pressure. Okay, so it's used for continuous recording of atmospheric pressure. No, barograph is different and barometer is different. Barometer जो है वो atmospheric pressure को measure करता है. Barograph atmospheric pressure का continuous recording करता है. ठीक है, so point B को जाएगा third. All right. Now we're left with the third option. All right, that is cryscograph. All right, okay, cryscograph is used to measure the growth in plants. All right, so for option C it will be 5. All right, now we are left with, for example, this viscometer. Viscometer is used to measure the viscosity of liquids. So for D option
1 will be the relevant one. Now we're left with the last one, that is hygrometer. Sorry, I will change the color. It's used to measure the humidity in the air. For E जो है it will be 4. So 1 2 3 4 5. ठीक, but still have a look on these. So this will be the most appropriate answer for this particular question. Alright, sometimes questions on the instruments are even asked in the exam. Since I cannot cover all the instruments which measure different things, different quantities, but I have given some few important so that you can revise instruments also. Alright, let's move to another question. Alright, so the question is the atomicity of hydrogen is, and the correct option is 2. Why? Because see, what is atomicity? जब elements या element जो है, जब वो atom से molecules बनाते हैं, यानी when they exist in their molecular state, ठीक है, so they form the molecules. Now ये जो molecules हैं, atoms as such जब molecular state में exist करते हैं, now एक molecule को एक स्पेसिफिक एलिमेंट के मॉलिक्यूल को कितने एटम्स की ज़रूरत होती है, सो दैट ये कैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द एटोमिसिटी. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन जो है उसकी एटोमिसिटी 2 है. दैट मीन्स जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स होते हैं. सो H2 मीन्स कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है या हाइड्रोजन, सिंस इट एग्जिस्ट्स एज ए गैस, जो हाइड्रोजन गैस है उसमें कितने एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑल्सो O2. ऑक्सीजन जो है दैट इज द एलिमेंट ऑक्सीजन. ठीक, जब वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन नेचर, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Alright, so the question is the dispersion of either a solid or a liquid in a gas is known as, and the correct option is aerosol. Now ये what is this all about? It's actually about colloids. ठीक है, जैसे अनलाइक इन ट्रू सॉल्यूशंस जहाँ पे एक सोल्यूट होता है जो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, कोलाइड्स में क्या होता है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं. दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स. ठीक है, जहाँ पे particles of one substance they disperse between, or you can say in another substance. ठीक है, जो particle disperse होते हैं they are known as dispersed phase. ठीक है, और जिसमें वो disperse होते हैं that's known as dispersion medium. all right, so these are important. जैसे true solutions में हमें solute और solvent होता है, यहाँ पे we have a dispersed phase and we have a dispersed medium. ठीक, now जो given question था हमें, that is the dispersion of either a solid or a liquid in a gas is known as, ये जो कोलाइड है this is known as aerosol. ठीक है, ये जो जेल है, इमल्शन है, these are other colloids, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होता है. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट कि आप जेल को देखें, व्हाट इज अ जेल, व्हाट इज एन इमल्शन. ठीक है, समटाइम्स दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम. फिलहाल जो हमने देखा क्वेश्चन में उसका जो आंसर है दैट इज एरोसॉल. ठीक है, यहाँ पे एडिशन में मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल जब ये डिस्पर्स्ड फेज जो है वो या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, वो यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, एक गैस होगा. जब डिस्पर्स्ड कोलाइडल पार्टिकल जो है सॉलिड होगा तो वहाँ से इवेंचुअली जो बनता है दैट्स नोन एज स्मोक. एंड जब ये लिक्विड होता है, जब लिक्विड एज अ डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स होता है गैस, वेयर गैस एक्ट्स एज द डिस्पर्शन मीडियम, उस केस में एक फॉग जो रिजल्ट बनता है दैट्स नोन एज फॉग. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. ठीक है, इमल्शन में जैसे हमने कहा था शायद प्रीवियस क्वेश्चन क्लास में मैंने इमल्शन के बारे में बता दिया था, जहाँ पे एक लिक्विड डिस्पर्स होता है दूसरे लिक्विड में, लेकिन वो उसमें सॉल्युबलाइज नहीं हो जाता, यानी वो इमिसिबल होता है. फॉर एग्जांपल हमने ऑयल एंड पेंट का देखा होगा, सॉरी ऑयल एंड वाटर का देखा होगा, है ना. तो यहाँ आपने पेंट देखा होगा, पेंट जो हम रंग वगैरह करते हैं. ठीक है, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शंस. ऑलराइट, जेल में यू नो दे आर जेलेटिन, जेलीज हैं, जिसमें एक कोलाइडल सॉलिड लिक्विड में तो हो जाता है डिस्पर्स, लेकिन वो उसमें एज अ स्ट्रक्चर सेट हो जाता है, जैसे जेलेटिन है, जेलीज हैं. दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ जेल्स. ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज एन इफेक्ट एक्सिबिटेड बाय द कोलाइड्स. कोलाइड्स ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किए इन द प्रीवियस क्वेश्चन, और इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है टिंडल इफेक्ट. सो ये मैं आप तक छोड़ती हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लेकिन दिस इज एक्सिबिटेड बाय द कोलाइड्स. ठीक है, हिंट आई विल ड्रॉप कि टिंडल इफेक्ट जो है ये इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं कोलाइड्स. ठीक है, ऑन इंटरेक्शन विद लाइट.
ठीक है। तो क्या लाइट के साथ कोलाइडस किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब वो बिहेवियर क्या है, दैट इज अप टू यू टू फाइंड आउट। ठीक, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Alright, so the question is which of these is an example of a chemical change, and the correct option is all of these, because rusting of iron जो है उसमें भी आयरन ऑक्साइड बनता है। रेडियो एक्टिव डिके जो है दैट इज अगेन अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें सॉर्ट ऑफ डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, डिके हो जाता है। एक हाई मास न्यूक्लियर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस एज यू नो, रिएक्टेंट से एक नया डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है इन फोटोसिंथेसिस। सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज मास नंबर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मास नंबर से हमें न्यूक्लियस का मास जो है वो पता चल जाता है। टू सम एक्सटेंट रफली एक एस्टिमेशन मिलता है न्यूक्लियस के मास का। ऑलराइट, सो विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम। ठीक है, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Alright, so the question is the elements which show the property of both metals and non-metals are known as, and the correct option is metalloids. ठीक है, कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास होने देते हैं। जैसे नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, वाइल एज अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो जाती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं विच आर ए सॉर्ट ऑफ इन अ, मतलब जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में जो है बिहेवियर के रिस्पेक्ट में, तो उन्हें सेमी कंडक्टर्स हम कहते हैं। ठीक है, देन एलॉयज जो है ये मिक्सचर होते हैं मेटल मेटल का, मेटल नॉन मेटल का। ठीक है, सो लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेटलॉइड। ऑलराइट, सो आई वुड सजेस्ट कि नो टू लुक फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। ठीक है, ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज कैल्शियम occurs naturally as calcium sulfate, calcium carbonate, both, none of the above, and the correct option is both. That is, कैल्शियम जो है नेचर में एज कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोनों एग्जिस्ट करता है। कैल्शियम सल्फेट को ऑल्सो कॉमनली जिप्सम कहते हैं। ऑलराइट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसे लाइमस्टोन, मार्बल या चौक वगैरह कहते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन। ठीक, नाउ वी विल सी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है इनकी। स्पीकिंग ऑफ जिप्सम, तो इट इज कैल्शियम सल्फेट, Ca फॉर कैल्शियम, SO4 फॉर सल्फेट, लेकिन इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में होते हैं। ठीक है, एंड स्पीकिंग ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो है, या एज कैल्शियम सल्फेट half of water molecule, and then it's known as plaster of Paris, POP, right? And when you have this calcium carbonate, so chemically it is CaCO3. limestone जो है, या for example chalk, marble. All right, okay, so let's move to another question. All right, so the question is heavy water used in nuclear reactors as a moderator, ठीक, is chemically, and the correct option is D2O. H2O जो है that's the normal water, D2O जो है it's deuterium oxide. All right, now here I will leave a question with you. H for hydrogen, D for deuterium, दोनों में क्या फ़र्क है? You have to find it out. All right, दोनों में there is some relation between H and D. हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम जो है इन दोनों में कुछ रिलेशन है. You have to find out that. अगर आपको पता चलेगा H क्या है, D क्या है, so we'll get to know कि H and D क्या है. All right, let's move to another question. All right, so the question is dry ice is, and the correct option is कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड जो है दैट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यू नो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर डिफरेंट केमिकल्स. लेकिन ड्राई आइस जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. बट व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली क्या है,
दैट एग्जिस्ट्स एज ए गैस, लेकिन जब यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देन इट्स कॉल्ड एज एक्चुअली ड्राई आइस. ऑलराइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Alright, so the question is the excess of glucose or sugar is stored in animals as, and the correct option is glycogen. ठीक, in case of animals this includes humans as well. ठीक है, इसे including humans. ठीक, so इसका जो correct option है that is glycogen. Now star जो है ये भी stored sugar है, stored food है in case of plants. लेकिन ठीक, fructose जो है it is a carbohydrate, ठीक है, and it is the sweetest sugar. ठीक है. Now speaking of insulin, it is used in the glucose metabolism. ठीक है, glucose metabolism. Alright, so let's move to another question. Alright, so the question is during the process of digestion of carbohydrates are broken into, and the correct option is monosaccharides. ठीक, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो है जब इनकी डाइजेशन होती है अल्टीमेटली ये जो है ब्रेक डाउन होते हैं इनटू मोनोसेक्राइड्स. लिपिड्स जो है दे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स लिपिड्स, और जिन्हें हम फैट्स भी कहते हैं. नाउ अमाइनो एसिड जो है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. दैट मीन्स जब प्रोटीन्स जो है उनकी डाइजेशन होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी तो दे विल ब्रेक इनटू मोनोसेक्राइड्स. प्रोटीन्स की जो अल्टीमेटली डाइजेशन हो जाती है अल्टीमेटली जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड जो है दे आर रेलिवेंट टू द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू another question. Alright, so the question is the excess of fat is stored in the body as dash tissue, and the correct option is adipose tissue. ठीक है, हमारी बॉडी excess of fat, excess of lipids, excess of triglycerides इनको स्टोर करता है in the body as adipose tissue. So adipose tissue है ये हमारी बॉडी का फैट टिश्यू होता है. ठीक है, मेरिस्टम जो है इट्स अ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जिसकी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ हो जाती है थ्रू आउट लाइफ. ठीक है, स्केलेटल, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ टिश्यू विच फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम. Okay, this forms the skeletal system in animals. Meristematic tissue जो है it is present in plants. Blood जो है as you know it's a fluid connective tissue. Alright, so let's move to another question. Alright, so the question is dash is a component of the connective tissue, bones, tendons and cartilage, and the correct option is collagen. ठीक है, so it's present in the connective tissue, bones, tendons and cartilage. Keratin जो है ये भी एक sort of, ठीक है, as I say that keratin, collagen जो है ये हमारे structural proteins होते हैं. ठीक है, जैसे collagen जो है ये connective tissue, bones, tendons, cartilage ये सारे examples हैं connective tissue के, और उनका ये component form करता है. Likewise जो keratin है it forms a component of for example hair, nails, feathers. ठीक है, alright, so let's move to another question. Yeah, globulin जो है it's again a protein. Now yeah, find out कर लेना. Alright, what is globulin? Okay, so let's move to another question. Alright, so the question is which of these is true about Kwashiorkor? ठीक है, number 1, it's caused due to the deficiency of proteins in children. This is a correct statement. इसमें क्या होता है, एडिमा होता है इन एब्डोमेन एंड फीट. अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एडिमा मीन्स जो है वाटर रिटेंशन हो जाता है. ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं उनमें वाटर जो है बिल्डअप हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन एंड फीट ऑफ सच चिल्ड्रन होते हैं उनमें स्वेलिंग देखने को हमें मिलती है. यानी इनकी जो बेलीज होती हैं या एब्डोमेन होते हैं वो बहुत प्रोट्रूडिंग होते हैं. ठीक है, बाहर की ओर निकले हुए होते हैं. ऑल्सो ड्राई एंड स्केली स्किन इन चिल्ड्रन, इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो चुकी होती है. ठीक है, ऑल्सो उसमें वो स्केलीनेस हुई होती है, यानी कि ऐसा लगता है वो स्केल्स उठते हैं स्किन के. देयरफॉर ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट ऑप्शंस हैं. ठीक है, आई मीन ट्रू स्टेटमेंट्स हैं अबाउट क्वाशियोरकोर. ठीक है, या वन थिंग, ये जो हमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है क्वाशियोरकोर इन चिल्ड्रन, इट्स अंडर 1 year ऑफ एज. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एडिशनल बता दूँ, देयर इज अनदर डिफिशियंसी डिजीज. ठीक है, दैट इज नोन एज मेरास्मस. ठीक है, यू शुड फाइंड आउट
this disease also sometimes. That's also even asked. All right, so let's move to another question. All right, so the question is the deficiency of dash causes cretinism and the correct option is iodine. Now iodine जो है इसके साथ आपने गोइटर डिसीज का नाम तो सुना होगा, राइट? बिकॉज आयोडीन जो है इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, ऑलराइट। लेकिन जब ये आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाती है, इसका मतलब ये जो थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स है इवेंचुअली दैट रिजल्ट्स इन द ग्वाइटर, एक कंडीशन हो जाती है, ग्वाइटर है जिसमें वो लंप जैसा निकलता है, ठीक है। नाउ अभी स्पीकिंग ऑफ क्रिटिनिज्म, ये क्रिटिनिज्म किन में होता है? इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है, इट्स ऑल्सो लिंक्ड टू आयोडीन डिफिशियंसी। लेकिन यहाँ पे एडल्ट्स में नहीं होता है, बल्कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें जो डेवलपिंग बेबीज़ होते हैं उन बेबीज़ में जो है आयोडीन डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें हर्डल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एज वेल एज वो एबनॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट दिखाते हैं, ठीक है। सो दिस इज वाइल गोइटर जो है ये एडल्ट्स में होता है ड्यू टू आयोडीन डिफिशिएंसी। क्रिटिनिज्म जो है ये डेवलपिंग बेबीज़ में होता है इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गोइटर एंड क्रिटिनिज्म, ऑल्दो बोथ आर लिंक्ड टू आयोडीन डिफिशिएंसीज, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेज फिर अल्टीमेटली डिफरेंट होते हैं। बच्चों में अंडर एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। गोइटर एडल्ट्स में डिफरेंट उसके सिम्टम्स होते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Alright, so the question is the mottling of teeth is caused due to, and the correct option is fluorine, ठीक है। As I said कि फ्लोरीन जो है आई मीन डिफरेंट मिनरल्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं या मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की नेचुरल नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो मिनरल्स जो हैं एक एडुकेट क्वांटिटी में हमें मिलने चाहिए, ना हमें उस एडुकेट रेंज से वो ज़्यादा या कम मिलने चाहिए, दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिफिशिएंसीज एंड डिसीजेज एंड एबनॉर्मलिटीज़, राइट। एंड ये जो मॉटलिंग ऑफ टीथ है दिस इज ऑल्सो नोन एज डेंटल फ्लोरोसिस, तो यहाँ से भी आप लिंक रख सकते हैं याद, फ्लोरोसिस मीन्स इट्स लिंक टू फ्लोरीन, ठीक है। दिस इज व्हेन कॉज ड्यू टू द लार्जर अमाउंट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, उसकी वजह से मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है, ऑलराइट, ठीक है, जिसमें क्या होता है वाइट और ब्राउन स्पेकल्स जो हैं वो आपके दांतों पे लग जाते हैं, ठीक है। सो इट्स बेसिकली ड्यू टू द ओवर एक्सपोजर टू द फ्लोरीन और फ्लोराइड, ऑलराइट। सो लेट्स मूव टू another question. All right, so the question is the deficiency of which of these causes, whether you read it as chelosis or chelosis. So basically इसमें क्या हो जाता है, it's a condition जिसमें जो mouth है, ठीक है, या lips हैं, ठीक है, उनके corners पे fissures हो जाते हैं, ठीक है। All right, so it's basically due to the deficiency of vitamin B2, which is also called as riboflavin. All right, so let's move to another question. Actually let's explore थोड़ा सा ये options. See, vitamin B1 that is thiamine and that eventually results in beriberi, all right. Vitamin B6 pyridoxine, okay, dermatitis, convulsions, it has a range of symptoms अगर इसकी deficiency हो जाती है. Vitamin B12 that is commonly called as, not commonly but that's chemically cyanocobalamin, ठीक है. So that is responsible for pernicious anemia, a sort of anemia ही, anemia के साथ B12 deficiency को link किया जाता है. Alright, let's move to another question. Alright, so question is tocopherol is commonly known as vitamin E, ठीक है. Vitamin A जो है it's commonly known as retinol, ठीक. Vitamin C is commonly known as ascorbic acid, alright, and vitamin K is phyloquinine इसका as such, so I will write phyloquinone, ठीक. and vitamin E जो है इसको tocopherol कहते हैं, ठीक है. so it's responsible for reversible sterility in females, alright. so sort of sterility के साथ इसको link किया जाता है, alright. so let's move to another question. So the question is leprosy is caused by, and the
करेक्ट ऑप्शन इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए। सो यहाँ से आपको पता चलता है, सिंस इस नाम से पता चलता है माइकोबैक्टीरियम, तो इसका मतलब लेप्रोसी जो है इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, सो इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, सो इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। One point about leprosy. Another point about leprosy that I would like to add, it's also known as Hansen's disease. All right, ये है. Okay, see this is also contagious. ये फैलती है लेकिन only after a close contact with the patient. And leprosy के बारे में कहा जाता है कि it's one of the least infectious diseases of all the infectious diseases. है तो ये infectious, यानी ये फैलती है, ठीक है, लेकिन ये फैलने का चांस, मतलब जितनी इन्फेक्शियस डिजीजेस उनमें से सबसे कम फैलने का चांस इसमें है. स्पीकिंग ऑफ द ऑप्शंस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इट कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस, ऑलराइट, कॉमनली कॉल्ड एज ट्यूबरक्लोसिस. ऑलराइट, माइकोप्लाज्मा जो है, दीज आर सॉर्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स. सायानोबैक्टीरिया, दीज आर ऑल्सो called as blue-green algae. Alright, so Mycobacterium leprae is the correct answer. Okay, so let's move to another question. Alright, so the question is pertussis is also known as, and the correct option is whooping cough. Some important facts about this is it's a bacterial disease, पहली बात. So it's a bacterial disease, ठीक, and it's caused by bacteria Bordetella, okay, pertussis. Alright, since initially ये mild disease होती है, and eventually जो है ये बढ़ जाती है, और इसमें एक you can say एक high pitched whoop रहता है while this cough जब ये होता है, तो इस disease को also कहते हैं 100 days cough. ठीक, alright. Speaking of sleeping sickness, it's a tropical disease caused by trypanosoma, ठीक है, और CC fly, ठीक है, and it's also known as trypanosomiasis. Filariasis जो है, that's also called as elephantiasis, वो Charia bancrofti उसको cause करता है. Pneumonia जो है, it's again a respiratory disease and it's also a bacterial disease caused by Streptococcus pneumoniae, ठीक है. इसमें inflammation of lungs हो जाता है, जिसमें chest pain रहता है, problem in breathing रहता है, ठीक है. Those normal respiratory syndrome, respiratory जो syndrome होता है उसके according, ठीक है, ये इसके symptoms होते हैं, ठीक है. So let's move to another question. Alright, so the question is, which of these vaccines gives considerable protection against tuberculosis? As I said, ट्यूबरक्लोसिस जो है, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ये भी इन्फेक्शन इन लंग्स इसमें हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, दैट्स नोन एज ट्यूबरक्यूलिन, ठीक है, जिसकी वजह से हाई फीवर रहता है इन दोज पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. ऑलराइट, एंड इसमें जो वैक्सीन दिया जाता है जो एक कंसिडरेबल प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, एंड दैट वैक्सीन इज नोन एज BCG. BC जो है, इट स्टैंड्स फॉर BCG जो इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस Calmette Guerin vaccine. Alright, now speaking of tuberculin, as I said, it's a toxin जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एंड इसकी वजह से हाई फीवर हो जाता है इन पेशेंट्स में, ठीक है. एंड स्पीकिंग ऑफ डॉट्स जो है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. ऑलराइट, ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक विंग है जो इनको कंट्रोल करता है. इसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट. देन यू हैव DPT, ठीक है, ओके. DPT जो है, D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, P स्टैंड्स फॉर pertussis विच इज़ द whooping cough, एंड T स्टैंड्स फॉर टेटनस. ऑलराइट, ये एक वैक्सीन है. DPT जो है, इट्स ऑल्सो ए वैक्सीन. नाम मैंने आपको बता दिया व्हाट DPT स्टैंड्स फॉर, ठीक है. ये बेबीज़ को दिया जाता है इम्यूनाइजेशन में के दौरान विद इन द फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ देयर बर्थ, ठीक है. इवन एडल्ट्स में भी इनके बूस्टर्स दिए जाते हैं, ठीक है. ये इन DPT 3 डिजीजेस के लिए होता है, ठीक है. T इज़ नॉट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, T इज़ फॉर टेटनस, वो चीज़ आप याद रखना. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Alright, so the question is, which of these are the examples of sexually transmitted diseases? And the correct option is all of these. ये सारे जो हैं sexually transmitted diseases है, gonorrhea, syphilis and AIDS, ठीक है. तो gonorrhea जो है, it's also a bacterial disease caused by the bacteria Neisseria gonorrhea,
ठीक है, एन गोनोरिया और गोनैरिया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पेल इट, ठीक है। सो इसमें जो सिम्टम्स रहते हैं ये ज़्यादातर ड्यू टू सेक्चुअली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैन में, इन केस ऑफ मैन देयर इज़ बर्निंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, पेनाइल डिस्चार्ज होता है। विमेन में ऑन द अदर हैंड उसमें एसिम्टोमेटिक ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे, इट्स अ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स। देन स्पीकिंग ऑफ साइफिल्स जो है, इट इज़ ऑल्सो अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिन्हें हम STDs कहते हैं, ठीक है। साइफिल जो इट्स ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिसीज, ऑलराइट, caused by Clostridium, caused by Treponema pallidum, okay, Treponema pallidum, ठीक है। अगेन इसका जो प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, दैट्स अगेन थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। And it's also seen that it can be transmitted from mother to the child, ठीक है, or to the fetus during pregnancy or at birth. About AIDS, I think you may be having a lot of knowledge about AIDS, the basic preliminary knowledge, okay. So let's move to another question. All right, so the question is, dash is the viral infection of liver, and the correct option is hepatitis, ठीक है। नाम से ही पता चला, because hepato is relevant to the liver, ठीक है। So it's a viral infection of liver. इसमें क्या होता है, इसमें जो symptoms ज़्यादातर रहते हैं, loss of एपेटाइट रहता है, नॉशिया रहता है, और जो स्टूल होता है वो वाइटिश होता है, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन यूरिन होता है, ठीक है। अब हेपेटाइट्स में जो है दो तरह के हैं, एक तो है हेपेटाइट्स A वायरस HAV, एंड अनदर वन इज हेपेटाइट्स B वायरस HBV, ठीक है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली HAV वायरस एंड हेपेटाइट्स A वायरस है, जो विच कॉजेज हेपेटाइट्स A, ठीक है। तो नॉर्मली एपिडेमिक जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ये उतना फैटल नहीं होता, इसको ये ज़्यादातर फीकल या ऑरल इन्फेक्शन रूट की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है। हेपेटाइटिस B वायरस जो है वो फैटल होता है, क्रोनिक भी हो सकता है, यानी फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ इन्फेक्शन जो सस्टेन कर सकता है, ओके। वाइल एक्सप्लोरिंग द अदर ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल अगर हम टेटनस की बात करें, टेटनस जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लॉक जा, ठीक है, दैट्स लॉक्ड जॉ सॉर्ट ऑफ। सो ये इट्स ऑल्सो कॉज्ड बाय अ मोटाइल बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रोडियम टेटनी, ठीक है, जो ज़्यादातर डस्ट, गर्द, मैन्यूअर वगैरह इन चीज़ों में, सॉइल में पाया जाता है, और ये बॉडी में एंटर होता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी पे कहीं पे खरोच वगैरह लगी हो, थ्रू इंजर्ड सरफेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वैसे ये फैलता है, ठीक है। इसमें पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो जाता है, ठीक है, कभी कभार इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी जो है इन्वॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लॉक जॉ, ठीक है। इट बिकम्स इवेंचुअली द डिसीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें जॉज, नेक वगैरह उनकी पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो इसके लिए जो यू कैन से सिरम दिया जाता है, ठीक है, दैट्स नोन एज ATS एंटी टेटनस सिरम, ठीक है, वो इसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नमोनिया के बारे में मैंने बता दिया, इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसीज। स्पीकिंग ऑफ द प्लाग, ठीक है, प्लाग जो है इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नोन एज पेस्टुरिला भी उसे कहते हैं, और कॉमनली यर्सीनिया पेस्टिस भी कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक्चुअली प्लाग जो है इसे कंसिडर किया जाता है एज द डिसीज ऑफ द रैट। ये एक्चुअली जो रैट्स होते हैं ना, उनके बॉडी में एंडोपैरासाइट होता है, उनके गट में, दैट्स नोन एज रैट फ्ली, ठीक है, उसमें ये होता है, ठीक है, विच इवेंचुअली इन्फेक्ट्स द रैट, एंड फिर ये इस तरह फैल जाता है, ठीक है। ब्लैक डेथ इंसिडेंट के बारे में you must have heard about, ठीक है, so I won't get into the details, all right। So this was about this particular question, all right, so this was the last question of today's practice set, all right, see you some other time.